اس کے علاوہ کسی پنچایت گھر میں یا کسی بیٹھک پر پنچایت ہو رہی ہو، پوری رات گزر جائے گی، کس کی برائی، چغلخوری، غیبت، یہ تمام طرح کی برائیاں ہماری بیٹھکوں پر موجود ہیں۔ کبھی نیند نہیں آتی، کبھی گھر یاد نہیں آتا۔ اب مجھے بتا، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا سے بلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کمیٹی کی بہت محنت اور اس کے بعد آپ یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا جلسے کا ماحول بنا لیجیے، آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ جلسے میں آئے۔ اچھی بات ہے کہ آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں، مگر سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سو جائیں، سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے جنگلوں میں گھومنے لگیں، تو وہ بھی پھر غلط ہو جائے گا۔ جس مقصد کے تحت آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا جلسہ کرنے کا اصل مقصد ہے دین کی تبلیغ۔ دین کی تبلیغ کرنے کے تین طریقے، تین راستے۔ پہلا تصنیف، اچھا سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھانا ہے آپ نے، اور یہ کب ان کے وکٹ گر جائیں، کب ان کے ساتھ کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن رہے ہیں اور جب اپنی پہ آئیں گے تو پھر کہاں بڑے بڑے اچھوں کی نہیں سنتے، پھر تو یہ سب کو مجبور کر دیتے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے شاید غنیمت نگر کے بچے بڑے سمجھدار ہیں، ابھی تک تو بڑے سکون کے ساتھ، یہ جو سامنے والے ہیں ہو سکتا ہے مفتی صاحب قبلہ کا ڈر ہو، ابھی تک تو یہ سکون کے ساتھ بیٹھے۔ ادھر والے تھوڑے گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سکون سے ہو جائیں گے، مگر محفل کا طریقہ یہی ہے کہ بڑوں کو آگے ہونا چاہیے۔ جلسہ پورے صحیح طریقے سے، بس رہنے دیجیے اب، جیسے اب نہیں، اب رہنے دیجیے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کل ہے، یہ اچھے ہوں گے تو ہمارا کل اچھا ہوگا، بول دو یہ ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے، یہ جتنے اچھے ہوں گے ہمارا مستقبل اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو ضرورت ہے ان کو صحیح کرنے کی، یہ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ زمانہ خود بخود مضبوط ہو جائے۔ بولیے بولیے دراصل۔ اب آپ ہاں تھوڑی سستی کو دور کیجیے گا۔ اور میں بتا رہا تھا تبلیغ کرنے کے تین طریقے۔ پہلا طریقہ ہے تصنیف، اس کی آواز اور کم کر دیجیے، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے مگر آواز کم کر دیجیے۔ میرا مزاج ہے بس آپ کو تھوڑی دیر پڑھانا، آپ کے ذہنوں تک اپنی بات کو پہنچانا، اچھا لگے نہ لگے کوئی مطلب نہیں ہے، تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پہلا طریقہ ہے تصنیف۔ رائٹر مصنف کتاب لکھتا ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد میں جہاں جہاں اس کی تصنیف جاتی ہے، کتاب جاتی ہے، لوگ اسے پڑھ پڑھ کے دین حاصل کرتے ہیں، مگر کام مشکل ہے۔ کتاب لکھنا، مصنف بننا آسان نہیں، مشکل ہے، لیکن اللہ کا فضل جن پر ہو وہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے تدریس، پڑھنا پڑھانا، یہ بھی سب کے بس کی بات ہے۔ بی اے، ایم اے، بی ایس سی، ایم ایس سی سب کرتے ہیں، مگر کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھانا یہ کسی کسی کو آتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جماعت میں بھی ہے تدریس، یہ بھی مشکل کام ہے۔ معافی ضمیر بچوں تک پہنچا دینا، ان کو سمجھا دینا، یہ مشکل کام ہے۔ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بھئی کتابیں سب لکھ نہیں سکتے، نہ سب پڑھ سکتے، اب رہا پڑھنے کا مسئلہ، پڑھانے کا مسئلہ، تو مدرسے میں سب جا نہیں سکتے، نہ آپ سب پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیج پا رہے، بھیجتے ہیں تو صرف 1 گھنٹہ کے لیے، ایک امام صاحب 100 بچے، ایک امام صاحب 100 بچے۔ اب مجھے بتائیے 1 گھنٹہ میں اگر ان سب بچوں کی شکلیں اچھی طریقے سے دیکھ لیں تو یہی بہت ہے، پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے 1 سال کے بعد میں امام صاحب کا ہاتھ پکڑا، حضرت میرا بچے کو جاتے جاتے 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک قاعدے سے نہیں نکلا۔ میں نے کہا غنیمت جان، یہ قاعدے کی بات کر رہا ہے، ورنہ جو تیری اور تیرے بچے کی حالت ہے یہ تو علی باتوں سے بھی نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ آپ اسکول پڑھاتے ہو، آپ کا 8 بجے اسکول ہے اور آپ کا بچہ مدرسے میں 8 بجا لے تو فوراً زمیندار صاحب،
फुला साहब जितने भी साहब हैं एकदम इमाम साहब के सर पे सवार होते हैं। हजरत क्या आपको मालूम नहीं है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है? क्या आपको मालूम नहीं है मेरा बच्चा सेंट मैरी में जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है मैं 5,000 रुपए महाना अपने बच्चे की फीस जमा करता हूँ? आपने अभी तक रो रखा है। तो वो भी कहते हैं ठेकेदार साहब, मुतवल्ली साहब, सदर साहब, आपको कौन रोकने वाला है? शहजादे को लेकर जाइए, शहजादे को लेकर जाइए। कितना? 1 घंटा आप भेजते हैं, सिर्फ 1 घंटा। उसके बाद स्कूल पढ़ाते हैं, कितना? 5 घंटे। और उसके बाद में ट्यूशन भी है। अरे है या नहीं है? ट्यूशन है या नहीं है? यानी जो सब्जेक्ट, जो बच्चा, जो फन, जो इल्म स्कूल में क्लास के अंदर पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट की ट्यूशन भी पढ़ाई जा रही है। तो मतलब यह है स्कूल के अंदर पूरी जिम्मेदारी नहीं है, सही तरीके से फन पढ़ाया नहीं जा रहा है, सही तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसी वजह से आपको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। फिर आपके बच्चों को 2-3 अल्फाज इंग्लिश के आ जाए, इंट्रोडक्शन वो इंग्लिश में कराने लगे, अपने माँ बाप का तारुफ वो इंग्लिश में कराने लगे। आप खुश होते हो मेरे बच्चे को इंग्लिश आ गई। इंग्लिश क्या है भाई? एक लैंग्वेज है, जबान है, जैसे उर्दू है, हिंदी है, अरबिक है, फारसी है, मलयालम है, पंजाबी है, एक जबान ही तो है। आप जबानों सीखने का बहुत बड़ा खाका है, मगर ऐसा नहीं साहब जो इंग्लिश बोलने आता हो तो उसे IPS अधिकारी बना दिया जाए। साहब गनीमत नगर में सबसे अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, इनको DM की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। किसी भी लैंग्वेज की बुनियाद पर कोई ओहदा नहीं मिलता। ये तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए एक जबान है जिसकी जहां जरूरत है आप सीख सकते हैं। अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, जब आप सारे के सारे मदरसे में पढ़ नहीं सकते हैं, जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो आप क्या पढ़ोगे? तो फिर मुझे बताइए, आपने जब कलमा पढ़ा है, जब आप मजहब इस्लाम में दाखिल हो, जब आप मुसलमान हो, तो मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, मुसलमान बिरयानी खाने का नाम नहीं है कि अगर भट्टी का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, डीजे का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 10वें का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 20वें का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 40वें का हो वो भी नहीं छोड़ेंगे। अभी दफन किया है गांव का खलीफा, कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करता है सारे साहब खाना खाकर जाए, खाना खाकर कोई भूखा ना जाए। और वहीं से किसी ने इमाम साहब का हाथ पकड़ा, हजरत आपको फाता भी देनी है, खाना भी है। इमाम साहब बचना चाह रहा है, यार आप खाइए। नहीं, खाना जरूर है, खाना पड़ेगा, डीजे का खाना पड़ेगा, 10वें का खाना पड़ेगा, 20वें का खाना पड़ेगा, 40वें का खाना पड़ेगा। अगर इमाम ने नहीं खाया, पूरी बस्ती के अंदर एक कोहराम सा है, लो भाई ये इमाम साहब आए हैं जो तीजे का नहीं खा रहे हैं, भट्टी का नहीं खा रहे हैं। और जैसे ही मंगनी का घर पे नंबर आए या फिर 7 दिन तारीख का नंबर आए, जब सारा सिस्टम खत्म हो गया, दस्तरखान मेज से उठा लिया गया, घर में किसी खातून को याद आई, अरे इमाम साहब को, तो सर पे हाथ मार के कहता याद न रही, भूल गया, जल्दी से कल्लू मल्लू जाइए और जल्दी से इमाम साहब को बुला के ला। मुझे बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, 3वां, 10वां, 20वां, 40वां सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से सवाल हुआ, हुजूर ये बताइए तीजों के चनों के बारे में क्या हुक्म है? तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, लेना जायज। इतना ही समझना जितना समझाया जा रहा है, न ज्यादा समझने की कोशिश करना, न कम समझने की कोशिश करना, वरना मामला खराब हो जाता है। क्या फरमाया आला हजरत ने? लेना जायज। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं गरीबों का हक है, अगनिया को बचना चाहिए, मालदारों को बचना चाहिए, और मैं फकीर, मैं भी नहीं लेता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर कोई भट्टी का नहीं खाना चाह रहा है तो इमाम को क्यों जबरदस्ती लेके जा रहे हो? मंगनी में तुम भूल जाते हो, शादी में तुम भूल जाते हो, 10वां तुम्हें याद है, 20वां याद है, 40वां याद है, यानी बिरयानी कोरमा। मुसलमान सिर्फ ये समझता है हमने कोरमा खा लिया मुसलमान हो गए, बिरयानी खा ली मुसलमान हो गए। नहीं नहीं, कोरमे से आगे बढ़ना पड़ेगा, बिरयानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। मुसलमान इसे नहीं कहते हैं। अब मुझे बताओ, जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा, तो दीन सीखोगे कहाँ? अल्लाह अल्लाह रहा जुमा। जानते हो जुमा क्यों कायम किया गया? जुमा इसीलिए कायम किया गया है ताकि शहर के या बस्ती के मोहल्ले के लोग मस्जिद में जमा हो जाएं और इमाम जुमा
वो तकरीर करे जो कौम को जरूरत हो कि कौम इतनी पीछे क्यों रही है, कौम तरक्की कैसे करेगी, कौम में नशा क्यों है, हमारे दरमियान जुआ क्यों फैल रहा है, हमारे दरमियान सूद क्यों फैल रहा है। इमाम की जिम्मेदारी है जुम्मे में बयान करे। अगर किसी हसास मौजू पे अगर जिक्र चल रहा है, इमाम साहब सिर्फ 2-3 मिनट बढ़ा दे, अल्लाह अल्लाह, तो कभी इमाम साहब का चेहरा देखते हैं, कभी मस्जिद का घंटा देखते हैं, घूर घूर के देख रहा है, टिकटिकी बांध के देख रहा है, जैसे इमाम साहब ने इनके अब्बा की जमीन मार ली हो। मुझे बताइए, अरे भाई देखा इमाम साहब को, इन्हें तो टाइम की परवाह नहीं है, बोर्ड लगा है, जब यही टाइम की परवाह नहीं करेंगे तो और क्या करेगा। इसे नींद आ रही है, इसे घर याद आ रहा है, इसे खेत याद आ रहा है, इसे जानवर याद आ रहे हैं। मुझे बताओ, मगर उसके अलावा किसी पंचायत घर में या किसी बैठक पर पंचायत हो रही हो, पूरी रात गुजर जाएगी, किसकी बुराई, चुगलखोरी, गीबत, ये तमाम तरह की बुराइयां हमारी बैठकों पर मौजूद है। कभी नींद नहीं आती, कभी घर याद नहीं आता। अब मुझे बताओ, जब मदरसे में दीन पढ़ नहीं सकते हो, आप किताबें पढ़ नहीं सकते हो, जब आप जुमे में तकरीर सुन नहीं सकते हो, फिर ये बताओ दीन सीखोगे कहाँ, दीन सीखोगे कहाँ। और जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। तो फिर याद रखो, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दीन सीखने का जलसा है, जलसा। तो जरूरत है जलसे को सिर्फ नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, लोग जमा हो जाए, जलसे में तादाद ज्यादा हो जाए, चंदा ज्यादा लेना है, नहीं। आज के दौर में जो जलसा हो रहा है, ये कोई जलसा नया नहीं है, जलसा बहुत पुराना है। मेरे नबी के दौर से जलसा हो रहा है, सहाबा के दौर से जलसा हो रहा है। और सरकार वो से पाक जहां मदरसे में पढ़ाते थे, पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, पिलाते। अल्लाह अल्लाह, अगर हम किसी को पढ़ाए, मुफ्ती साहब किसी को पढ़ाए, तो किसी को आलिम बनाए, किसी को फादिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए। सरकार वो से पाक अल्लाह अल्लाह, पीरों के पीर रोशन जमीन जब दरसगाह में बैठते हैं, तकरीबन 13 उलूम व फनून, 13 सब्जेक्ट मदरसे में बैठकर पढ़ाते हैं। और पढ़ाते नहीं है, पिलाते हैं, पिलाते। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो गौसे अब्दाल बना दिया। वो पीराने पीर मदरसे में पढ़ाते हैं, पिलाते हैं। और मुझे बताओ,